Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel. I'm Vishali and today is a great day. Finally, if CAT 1 2022 results are out and by my voice you can make it कि बहुत अच्छा result आया है. I am so proud of all my students. I always used to stress on smart work. You all did it and you finally made it even after the change in pattern. I do know that pattern थोड़ा बहुत change हुआ है. Things have been added up and इसको मैं एक अलग वीडियो में डील करूंगी for all those who will be giving the next FCAT exam. And please भूल के भी ये गलती मत करना कि एग्जाम इस बार क्लियर हो गया तो नेक्स्ट एग्जाम में नहीं भरूंगा. यू हैव टू फिल इट आउट बिकॉज बहुत लंबा प्रोसेस है अभी. ठीक है, रेकमेंड होना है, उसके बाद मेडिकल होना है, फिर मेरिट आनी है, बहुत लंबा प्रोसेस है. सो नेक्स्ट FCAT एग्जाम सब भरेंगे एंड फॉर देम आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो. ओके, अब बहुत सारे बच्चों के ये डाउट है कि मैम आगे क्या करना है हमें. एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. आप लोगों ने अपना बेस्ट दिया है. Whatever you have done was the best, but कहीं ना कहीं छोटी मोटी कुछ कमी रह गई होगी. स्मार्ट वर्क नहीं किया होगा, ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया. दिस हैड बीन अ रीज़न जिसकी वजह से एग्जाम क्वालिफाई अगर नहीं हुआ तो ठीक है. अब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, देखो 157 इस बार कट ऑफ गई है और ये किस वजह से गई है? बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ है. ऑफकोर्स जो मार्क्स में ड्रॉप था वो होना ही होना था. ठीक है, अब जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, मुझे पता है बहुत डाउट्स है कि मैम एसएसबी की कौन सी डेट चूज़ करनी है, मैम एसएसबी जो है कौन सा सेंटर मुझे चूज़ करना चाहिए, एंड हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एसएसबी बिकॉज ऑल ऑफ यू नो आई बीन recommended 5 times. Not only that, I have given multiple results already. Inside SSB has crossed 80 recommendations. Okay, some of them have even passed out from academy and are serving as officers. Okay, and I'm waiting for the merit that is going to come because a lot of my students have been recommended जो अभी merit का वेट कर रहे हैं FCAT की. ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ SSB की, इसके बारे में I'll tell you thoroughly inside out. I have given total 5 attempts and in all these 5 attempts I've been recommended. And इसके मैंने आपको शेयर किए हुए अपने जो recommendation letters हैं वो भी videos available हैं YouTube पे. So in case you haven't seen, please make sure that you go through because मेरे recommendation letter along with the photos, everything is available. चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं एक बार सब लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, स्पेसिफिकली माई क्रैश कोर्स स्टूडेंट्स, बिकॉज यू गाइज हैव मेड मी सो प्राउड. इन 1 month एज वी एश्योर्ड कि भाई FCAT का आपका एग्जाम क्वालिफाई करके दिखवाएंगे एंड दैट हैज़ हैपेंड. प्लीज़ लुक हियर. People are sending messages that I've passed and I have made it through. People are so happy regarding the same. And along with you, I am too very glad that this course had certainly helped you. Also, आपका CDS का जो crash course है, that's there. And इस बार इसमें गारंटी है that 40+ marks हम आपको 100% दिलाएंगे. और the best part is कि 9th March, that is आज से ही कोर्स शुरू होना है. So please make sure that you go and enroll because we are closing the enrollments today in the night. Please make sure that you go and enroll in the course because otherwise you'll not be able to take the course. And there is also a coupon जिससे आपको 300 off मिलेगा. Please go and avail the same on the app. Talking about the students who have cleared it, देखिए स्कोर्स देखिए आप प्लीज़ FCAT बैचेस के. I am so glad to see these scores. We assure you 200+ marks and this is what we get. Smart study is the only way to clear the examination. Look here, 204 marks and the lady says that ma'am mocks इतने amazing थे कि मैं 190 के आसपास वहाँ पे स्कोर कर रही थी and still I was able to be near the same marks. ठीक है, and she is talking about coming back for the SSB guidance and we are waiting for it. ठीक है, again 204 marks, 200 marks, okay, 223 marks, 206 marks, 184 marks and also the screenshot of various marks and our students who have cleared. ये सब कुछ आपके Instagram पे available होगा. I don't want to waste your time by showing this. It is just assuring you that guys, this is a platform where you actually should step in because we believe in smart work and we believe in making sure that you guys reach your dreams, you guys make it through. Okay, अब मैं बात करना चाहूँगी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है. ठीक है, उसके बाद जिन्होंने क्वालिफाई किया उनकी बात करेंगे. तो गाइज देखो, आप लोगों की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, दैट इज़ यू डोंट एनालाइज द पेपर. पेपर एनालाइज नहीं करते हो, इसकी वजह से आप
गलत डायरेक्शन में मूव ऑन करते हो, रैंडम बुक्स पढ़ते हो, एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाते हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहते हो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, एमसीक्यू की आदत नहीं होगी, लिमिटेड टाइम में काम करने की आदत नहीं होगी, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लुक इनटू। आप अगर 7-8 घंटे भी दे रहे हो लेकिन आप वेस्ट कर रहे हो, आप वो चीज़ें पढ़ रहे हो जो दूसरे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट थ्रू। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड there is a way, there is a direction in which you have to prepare. It's a competitive exam. Lakhs of students give this examination. बहुत ही कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं और उसका एक ही रीज़न है कि आप लोग जो थे वो हार्ड वर्क कर रहे थे बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे थे, एंड व्हाट वी नीड राइट नाउ इज स्मार्ट वर्क। और अब एक और बात, जितने भी बच्चे हैं whoever wants to enroll for the course, आपका FCAT 2 2022 कोर्स इज ऑलरेडी अप ऑन इनसाइड SSB ऐप। 20 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सब कुछ एज पर टू द न्यू पैटर्न होगा। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें ऐड हुई हैं, everything will be available in this course. Please make sure if you want to study smart and you actually want to engage yourself into the right direction, because अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और उसकी वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। बट अगर आपके पास एक ग्रुप है, आपके पास राइट रिसोर्सेज हैं, राइट मटेरियल है, यू विल बी एबल टू मेक इट थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं विच SSB सेंटर टू चूज़, विच डेट टू चूज़। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आई नो जिनके 157 के बहुत पास मार्क्स हैं, ठीक है। जैसे कि 160s में आए होंगे किसी किसी बच्चों के, 167 ऐसे मार्क्स बन रहे होंगे आपके। और आप सबको ये डाउट है कि मैम शुड वी गो फॉर SSB, बिकॉज SSB जाने के बाद भी अगर मैं क्लियर भी कर लेता हूँ तो मेरिट आउट हो जाऊँगा ना। हु सेज दैट? देखिए, एडम लॉजिस्टिक्स, आई डू अंडरस्टैंड, ये दो ऐसी ब्रांचेज हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल है अगर मार्क्स लो हैं तो आपका सिलेक्शन। लेकिन इसके अलावा जितनी और ब्रांचेज हैं, you are applicable and you should not leave even a single chance. What if you get recommended and merit out? Does not matter यार, आपके next time में बहुत ज़्यादा मदद करेगी वो चीज़ कि आप previously recommended हो तो आपको एक already push मिलेगा when you give the examination next time, ठीक है। एक confidence भी आता है। तो एडम लॉजिस्टिक्स वालों को मैं बताना चाहूँगी कि yes, if your marks are less, चांसेस कम है बट नेग्लिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। इट्स नॉट नेग्लिजिबल, हाँ, इट्स गोइंग टू बी लिटिल टफ टू गेट थ्रू, ओके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द अदर ब्रांचेस, दैट इज फ्लाइंग ब्रांच है अगर आपकी, या आप टेक्निकल एंट्री हो तो गाइज वॉट एवर बी योर स्कोर, SSB क्वालिफाई करो। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप SSB में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, यू विल बी ईजिली एबल टू मेक इट थ्रू द मेरिट। मेरिट की तो इशू है ही नहीं, फ्लाइंग वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं SSB सेंटर्स की बात करूं, which SSB सेंटर टू चूज? नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, SSB सेंटर जो है, नो सिलेक्शन बोर्ड इज सिटिंग देयर टू किक यू आउट। हर किसी को वहाँ सिलेक्शन लेने हैं और हर किसी को दिखाना पड़ता है कि हमने इतने बच्चे बुलाए, इतने बच्चे हमने सेलेक्ट किए। उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है, ठीक है। नोबडी इज देयर टू पुश यू आउट। द ओनली थिंग इज दैट SSB सेंटर इतने किस लिए हैं, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और हर कोने में सेंटर हो ताकि बच्चों के पास रहे उनके जो सेंटर्स हैं, इसलिए प्रोवाइडेड है। तो जो नॉर्थ वाले बच्चे हैं वो देहरादून, गुवाहाटी जाना पसंद करेंगे, राइट। जो नीचे साउथ वाले बच्चे हैं, दे हैव अदर अपॉर्चुनिटी। सेंटर में है, वाराणसी है हमारे पास। सो दैट इज द थिंग व्हाई SSB centers are there. Okay, so you can choose any SSB centers. Talking about myself, I myself have been recommended from Bhopal, from Dehradun. So I have also chosen various SSB centers. It does not matter. ठीक है, Bhopal is not for FCAT. That was for the CDS entry of mine. So SSB सेंटर इज नॉट देयर टू किक यू आउट। प्लीज इस बात को मान लो। बच्चे बहुत अफवाहें फैलाते हैं कि देहरादून इज नॉट गुड, ठीक है, वहां पे जो जाता है वो रेकमेंड नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। आई बीन माई सेल्फ रिकमेंडेड फ्रॉम देहरादून। सो डज नॉट मैटर। प्लीज चूज सेंटर अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ योर्स कि आपके पास कौन सा है। दूसरी बात, डेट कौन सी चूज की जाती है। डेट आखिरी पहली से मैटर नहीं करेगा। अगर उन्हें सिलेक्शन करना है आपका, वो करेंगे, चाहे फर्स्ट डेट हो चाहे लास्ट डेट हो, ठीक है। The main reason why date is given is
बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत लोगों के कॉलेजेस होते हैं, एंड आप लोग हमेशा फ्री नहीं हो सकते हो। इसी वजह से कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल एग्जाम चल रहे हैं या आपका हेल्थ इशू है, यू हैव लॉट ऑफ डेट्स अवेलेबल सो दैट यू कैन अकॉर्डिंगली चूज। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने अगर एग्जाम क्वालिफाई किया 100% एसएसबी दे के आओ, सेंटर कौन सा चूज करना है, डेट कौन सी चूज करनी है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेट सिलेक्शन कैसे होता है। देखो गाइज, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली सीडेक का सर्वर चल नहीं रहा था, दैट इज द रीजन कि मेरे को आपको पिछले वाला दिखाना पड़ रहा है। बट अब आपकी न्यू डेट्स होंगी, ठीक है, जो ये आपकी डेट्स हैं यहाँ पे नई डेट्स होंगी, सो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग देख लेना। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती थी कैसे होता है। सो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन सेंटर आता है आपके पास। आप यहाँ पर एएफएसबी का नाम होगा और आपकी डेट होंगी। सो आप देख सकते हो कि अच्छा ये डेट्स अवेलेबल है देहरादून में, ये मैसूर में अवेलेबल है। तो एक बार चेक कर लेना आपके कॉलेज के एग्जाम्स कब हैं, आपको ऑफिस से छुट्टी कब मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करना, और जितना जल्दी सेलेक्ट कर सकते हो उतना जल्दी करना। वाई? बिकॉज अदरवाइज जो आपकी डेट्स हैं वो निकल जाती हैं, या फिर सिलेक्शन जो सेंटर है उस पर ख़त्म हो जाती हैं। जितनी भी सीट्स आप देख रहे हैं ना, ये सीट्स हैं, तो ये क्या होती हैं, ख़त्म होने लग जाती हैं, बहुत कम रह जाती हैं, उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि एसएसबी की प्रेपरेशन कैसे करी जाए। तो एसएसबी जो है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, पर्सनालिटी कैसे चेक करते हैं, ये साइकोलॉजी टेस्ट लेते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, दे वांट टू सी वेदर यू हैव दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और नॉट। एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि अच्छी इंग्लिश बोलना जो है दैट हेल्प देम टू क्लियर द एसएसबी। लेट मी टेल यू वन थिंग, देर इज़ वन गाय जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, माई स्टूडेंट इट सेल्फ, नाउ ही इज़ सर्विंग इन एयरफोर्स ऑलरेडी। ठीक है, अनमोल खवस करके देर इज़ वन इंटरव्यू, मैं उसको लिंक भी कर दूंगी। तो प्लीज़ एक बार उस कैंडिडेट की इंग्लिश को सुनना एंड लेट मी नो कि क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। It is not. What matters the most here is how you are able to present yourself. क्या जो आप सोच रहे हैं उतना बोल पा रहे, nobody needs you to be शशि थरूर there. Fine. तो फर्स्ट थिंग इज इंग्लिश, लेकिन हाँ इम्प्रूव करना एक अच्छी बात है, बिकॉज ये आपको जीडी, लेक्चरेट एक्सेट्रा यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प तो करेगी ही करेगी। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इंग्लिश के बाद जो मेन कंसर्न आता है साइकोलॉजी का आता है कि मैम साइकोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाए। देखो, साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बचपन से ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई दे आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस इवन इन इंटरव्यू। अगर आपने देखा होगा, अच्छा स्कूल में क्या किया, कौन से फ्रेंड्स थे, फैमिली क्या थी, वाई आर दे ट्राइंग टू आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस। आपकी फैमिली लाइफ के जान के उन्हें क्या मिलेगा? They just want to see that how close you are to people in your life and the people who are near to you, आप उनके साथ कैसा behave करते हैं, because आपका जो behavior है that will show them whether you're compassionate or not, whether or not you have leadership qualities, because leadership quality is basically something that comes up right away in your family also, in your friends also, that you take care of people or not, because these all things matter a lot once you become an officer. Okay, so these are the things that they are looking out for. उसके अलावा अगर मैं इंटरव्यू की बात करती हूँ, जीडी की बात करती हूँ, लेक्चरेट की बात करती हूँ, फॉर ऑल ऑफ दिस यू नीड नॉलेज। आई जस्ट want to say one thing, please start reading newspapers. This will help you to make amazing stories even in psychology. To be very serious, मैंने साइकोलॉजी जो है उसमें आई वॉज एबल टू डू वेरी गुड जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर, माई हैबिट ऑफ रीडिंग. So this has helped me to create stories which were very logical, very practical. Lot of people make impractical stories and you must have seen lot of videos, okay, जिसमें बताते हैं कि ऐसे लिखो, ये लिखो. देखिए, I'll tell you one thing. You should not know कि how to write stories. Instead, you should know what not to write. Basically, क्या चीज़ें हैं जो actually psychology hamper करती है, and how to improve yourself in regular day-to-day life also, because what you do on the daily basis is what makes you as a person. So in case you look at people, आपने कोई random accident देखा and आप उसमें avoid करके आ गए हो, so it simply means that you don't have those qualities. You cannot be a person who has those officer-like qualities, a person who is actually compassionate and helpful for people, right? So these things you should improve in daily basis also. अगर आप में ये quality नहीं है तो imbibe करो, लोगों की मदद करो, ठीक है? Always be on a side who is helpful to people.
So these things you can change in your regular life and can improve your officer like qualities. Now moving on to the next thing, a lot of people, if you are introvert जिनको बोलना पसंद नहीं है, so I'll tell you, please start talking to people. ठीक है, be a little more happening. Plus whoever is not in sports, please involve yourself into some hobbies, activities. This will help you to do better when it comes to SSB, because you have to have certain bonding with the people जो आपके साथ ground task में है. And I know a lot of people जिन्होंने 10 attempt दिए आज तक, उनके भी नहीं qualify हुए, and इसके बाद the students have come to me 12th 13th attempt में they have qualified their SSB. The reason was just that they were not able to understand, they were not able to self introspect, and a lot of people use this term self introspect, but पता नहीं होता कि कैसे करना है, right? Also for SSB preparation, there are 3 courses of mine that are going to help you immensely, which has actually helped a lot of students to qualify their SSB. The first one being the screening in course, which will give you a glimpse कि exactly screening in course क्या है. आप लोगों देखो, you don't need coaching, okay? What you exactly need is a direction. You need to know in which direction I need to work, and this is the course that will help you to do this thing. Same is the case with psychology course and interview course. Through this you will get to know. I do understand a lot of people have come मार्क्स बहुत कम है और जानबूझ के वहाँ पे इतने गलत रीजन देखे कि सर मेरी जो थी हेल्थ खराब थी, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट डू. ठीक है, दे लाई देयर ऑन द फेस ऑफ द इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड दैट लीड्स टू देयर disselection because they are not fools sitting around. Okay, so I'll just suggest you that what should be the measures, आपको कैसे interview handle करना चाहिए in a proper way, so that certainly when your interviewing officer is listening to you, even if you have a ground reality reason, you are able to convince him, because a lot of times interviewing officers don't get convinced, right? Same is the case with psychology. How many SRTs are required, situation को कैसे handle करना है, and that to day life में भी वो चीज़ improve करना है. Okay, so you can call us on this number, that is 7982047997, and can know about the courses. And immediately after this, the most important thing that you need to do is personal guidance course. Why is it important? जैसे ही आप समझ जाते हो कि how I have to tackle SRT, VAT, etc. Now there are always certain personal issues that students encounter. They don't understand a few things, या फिर वो stories बना रहे होते, they don't understand कि क्या मैं सही बना रहा हूँ या नहीं. So I will help you in that. 1 month long personal guidance helps you to एनालाइज कि कौन से वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मुझे और काम करना चाहिए, बिकॉज रेगुलरली आई चेक योर 2 स्टोरीज. ओके, सो इसमें आपको क्या मदद मिलती है? देयर इज नो गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें आपको इतना पर्सनल स्टैंड पे हेल्प मिलता है, बिकॉज लोग आपकी साइकोलॉजी को चेक करके बता देते हैं दैट यू हैव दिस क्वालिटी दैट इज नॉट देयर. व्हाट आई हेल्प यू टू डू इज, मैं आपकी स्टोरी चेक करके आई लेट यू नो दैट ओके दिस सेक्शन ऑफ योर स्टोरी शोज दिस थिंग अबाउट यू, एंड बिकॉज ऑफ विच you'll not be able to qualify, या फिर ये आपके बारे में कुछ गलत बताएगा जिसकी वजह से आपको रीचेक किया जाएगा whether in your conference etc. So 2 stories a day is what I check on regular basis. Along with that there is interview etc. that is conducted. आप उसके बारे में जान सकते हैं by calling us on Insight SSB number, and you can start with your AFSB preparation ASAP. and अभी से आपको instant preparation शुरू कर देनी चाहिए, because that is how you'll be able to make it through. Okay, this is my student Manisha. अभी recently इनका 3-4 महीने पहले ही कोर्स स्टार्ट हुआ है. ठीक है, so she is right now getting trained in academy, and she got back to back 2 recommendations once she was enrolled in my personal guidance course. Okay, so guys, this is all I wish to tell you. तो अपनी SSB की preparation start करो. All those who have not cleared the examination, please make sure that you don't waste your time anymore and start with your preparation right away. And also I'll be coming up with a video specifically on how to prepare for FCAT 2022, as we know that the pattern has changed. So please make sure that you watch that video. And again, lot of congratulations to all those who cleared the examination, and to all those who did not, you don't need to get disheartened. Okay, you have it in you and you will make it through.